continue the topic. Uh, we were doing chapter 2 of economics, that is sectors of the economy. Now, today we have to cover this topic which is given on the screen, that is where are most of the people employed. But before that, in yesterday's class, I told you about explained to you about the importance of the of one sector which is growing very fast. Can you name the sector which is contributing maximum in the economy of India? Ma'am, tertiary sector. Yes, very good. Who gave the answer? Ma'am, Tejaswini. Yes, Tejaswini, she's absolutely right. The tertiary sector was the major sector which the value of tertiary sector was most in the Indian economy. Now, can you tell me one or two reasons why this is like why it is so that tertiary sector is growing so fast? Three to four factors we have studied in the previous class. So what are the reasons that for the increasing importance of tertiary sector in India? Ma'am, it provides And because basic services. Okay, okay, it provides major services which are basic services required by the people, and it is Yes, provided by ma'am, the such as government. hospital, educational Yes, institutions, yes, post. these are the transportation yes. and promotion is also the major part which leads to the success of a product or a factory also. Yes, So correct. this tertiary sector also provides the provision of communication, transportation, and visualization, and it also leads to the GDP production also, increased GDP production. Yes, okay. Very good, Veena. So basically, tertiary sector act as a link between the primary and the secondary sector because, as I said, the raw material is brought to the industries with the help of transport, and then it is taken to the market again with the help of transport. So transport and communication, these are the basic infrastructure which is important for the development of other sectors. So for the development of other sector, tertiary sector is the most important. और अगर टर्जी सेक्टर डेवलप हो गया तो आपके जो अदर सेक्टर्स हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, या फिर आप कहें वाइस वर्सा, all the sectors are dependent on each other. Then I had given you a more reason that the standard of life of Indian people has increased. We हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर हो चुका है. वी हैव मोर इनकम नाउ, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड. सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज. पहले हम सिर्फ खाना पीना और बस जो बेसिक चीज़ें थी वो हम देखते थे कि गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ लें या फिर गवर्नमेंट जो है हम चीज़ें जो है सर्विसेज यूज़ कर ले बिकॉज दे वर चीपर एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर. बट नाउ as our income has increased, now we are looking for better options in the private sector also. We are sending our children to private school, to private hospitals where better facilities are available. So this has also created a vast demand for the services, different kinds of services like leisure services also. Now we are going for tourism purpose, not only in India but also in the foreign countries. जो पहले हम इतना नहीं सोचते, आज से 20-25 साल पहले हमारा इतना दिमाग नहीं जाता था, क्योंकि हम लोग अपने जो है खाना रोटी और जो कहते हैं ना बेसिक सर्विसेज जो है घर कपड़ा मकान, इसी में हम लोग इतना बिजी रहते थे कमाने में, क्योंकि उस समय गरीबी थी. सो बट नाउ दिस ट्रेंड इज स्लोली चेंजिंग. Now we will come to the today's topic, where are most of the people employed. So now as you know that the contribution of tertiary sector is more than secondary and then primary sector. It means the focus has now been shifted to the tertiary and the secondary sector. But क्या tertiary and जो आपका secondary sector है, are they also providing employment to the people? Now we will see what is the case now. Here in the graph you can see दिस इज शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज. नाउ इससे पहले जो हमने एक बार डायग्राम देखा था, कंपाउंड बार डायग्राम, आपने देखा था उसमें टर्जरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा थी, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, प्रोडक्शन सबसे अधिक जो था वो टर्जरी सेक्टर का होता. बट अब हम देखेंगे कि इंडिया के जो मैक्सिमम लोग हैं वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, विच सेक्टर इज गिविंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू द people.
Now here you can see this is the scenario of 1970-71, and now this is 2009 and 10. So we are going to compare both these bar diagrams, and this side is showing the percentage in employment. 10% people, 20, 30, 40, 100% people are employed in which sector. So ये year wise comparison है, and this is employment, the level of employment. And you can with the help of this you can see the which sector is representing by which color. This is primary, secondary, and purple by tertiary sector. So now you can very well compare that in 1970-71 period, maximum people were engaged in the primary sector only. More than 70% people were engaged in primary sector. Then आपके जो है कुछ आप ये देख सकते हैं, इतने जो थे कम से कम 10-15% people were engaged in the this secondary, and then 20% people were engaged in the, यार फिर लगभग इतना ही 15-16% जो आपके टर्जरी में थे. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर वाज द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट गिवर अमंग ऑल द सेक्टर्स. नाउ व्हाट हैज चेंज्ड इन द 30 years, देखते हैं हम क्या हुआ 2009-10 में. स्टिल प्राइमरी सेक्टर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट providing sector in India. But although it's a different thing that the share has declined. Earlier it was near to more than 70%. Now it is near to 52%. So 52% people are approximately are engaged in primary sector, but still it is high, all right, as compared to other sectors. If we compare it to the previous years, then it has declined. But अगर हम दूसरे sector से compare करें, then it is still high. Then you can see a secondary sector. So secondary sector share has increased from the previous decade 1970-71, but its contribution in the employment is less than the primary sector. And similarly with the tertiary sectors, again tertiary sector का जो share है employment में, जो maximum लोग employ होते हैं वो tertiary sector में अब increase हुआ है इस साल से 2009-10 में, but still it is less than the primary sector. So now here you can very well observe that primary sector is still has large scope where people are employed. अब स्कोप है या क्या है वो हम अभी देखते हैं, बट स्टिल इंडियन पीपल आर एंगेज्ड इन मैक्सिमम मोर देन 50% ऑफ इंडियन पीपल आर स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल और allied activities, that is in the primary sector. So it is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. So why this is happening, why the employment opportunity in the tertiary and secondary sector is still low? Because they were not able to generate enough employment. So still people are engaged in the agricultural activities. So the industrial output or the production of goods went up by more than 9 times. So here it is given that the contribution of tertiary and this secondary sector increased many times. 9 times जो है इंक्रीज हो गया इनका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में पहले से आज के टाइम में. बट स्टिल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो जो है सिर्फ 3 गुना बढ़ी है. तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा बढ़ा सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर का, बट ये एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं कर पाया. बिकॉज जो है मशीन से काम होता है, तो जहाँ 10 लोगों की जरूरत होनी चाहिए वहाँ 2-3 लोगों से ही काम चल जाता है, क्योंकि हर चीज़ जो है मशीन कर देती है. डायरेक्शन जो है इंसान दे देता है, बट मशीन जो है मैक्सिमम काम संभाल लेती है. सेम यही चीज ट्रेजरी सेक्टर में भी हुई है. ट्रेजरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा है इंडियन इकोनॉमी में. 14 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, पहले के कंपैरिजन में 14 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. बट एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, उसमें ओनली 5 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है. तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो है जो आपके टर्जरी एंड प्राइमरी सेक्टर है, देयर कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, देयर प्रोडक्शन लेवल हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड, बट दे वर नॉट एबल टू जनरेट इनफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इतना एम्प्लॉयमेंट इन्होंने नहीं दिया. इसका मतलब ये कम लोगों में भी इन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन किया है. बट ऑन द अदर हैंड एग्रीकल्चर में क्या है कि मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, स्टिल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग. इट मींस दैट जितने लोगों की आवश्यकता है एग्रीकल्चर में, व्हाट इज दिस इज शोइंग that 52% people are more than half percentage of people are engaged in agriculture, but still the contribution of primary sector in the economy is declining. It means that whatever amount of number of people are required for agriculture are more as compared to what actually required. ठीक है, मतलब जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं. इसका मतलब उनके पास कोई जॉब नहीं करने के लिए, इसलिए वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं. ऑल्दो देयर इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी इज नथिंग.
तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था अबाउट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर मुझे डिसगाइज्ड या अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, कि जितना आप में एक व्यक्ति में क्षमता है काम करने की, वो उस हिसाब से नहीं कर पा रहा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। सो व्हाट इट मीन्स is that there are more people in agriculture than is necessary. It means that there are number of more people in agriculture which is not required. So even if you have if you move a few people out, production will not be affected. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप उन लोगों को हटा भी दो तो उससे उनके प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जस्ट काम कर रहे हैं, उनका इंडिविजुअल जो है लेबर प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। In other words, workers in agricultural sector are underemployed. So those people who are working in agricultural sector, they are underemployed. ये आप ऑलरेडी जानते हो कि फॉर एग्जाम्पल एक खेत है जिसमें कि जो हमारे इंडिया में साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी लार्ज, बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं। तो उसमें मान लो एक फैमिली काम कर रही है, तो उसमें सिर्फ 2 या 3 लोगों से भी काम चल जाएगा, बट स्टिल जो 2 लोग और है उस फैमिली में, उनके पास क्योंकि कोई नौकरी नहीं, तो वो भी उसी में लगे हुए हैं, उसी खेत में काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वो 2 लोगों का जो है, अगर वो ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा, प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मीन्स कि 2 लोगों का जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस वर्क में, दे आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग, कि बस करना है तो कर रहे हैं, वरना उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके पास कोई और जगह नहीं जाने के लिए, कोई और रोजगार नहीं, तो वो वहां पे लगे हुए हैं। सो दिस इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड मीन्स व्हेन यू आर लुकिंग दैट, व्हेन यू अपीयर दैट यू आर वर्किंग। Ma'am, यस ma'am, why the provider hire extra people and why the provider increase his own budget, ma'am, to employ some few more people? सी, ये जो आप बोल रहे हो, इसका मैं ये कह रही हूँ कि जो भी नहीं, जिसकी देखो बड़ी जमीनें हैं, ठीक है, वो फार्मर्स जिनके पास बड़ी जमीनें, वो तो एम्प्लॉय करेगा ही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके खेत बहुत बड़े नहीं होते। इंडिया में देखो मैक्सिमम जो है हमारे मोर देन 60% जो हमारे फार्मर्स है या 70% फार्मर्स हैं, उनके साइज का लैंड होल्डिंग बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। और वो क्या गए अपने जो है, मान लो 5 या 8 मेंबर्स उनकी फैमिली में है, तो वो उनके 3-4 लोगों से भी उनका काम चल सकता है। अगर 3-4 लोग भी उनके घर खेतों में काम कर रहे हैं तो उसका काम चल जाएगा। बट क्योंकि आपने कहा कि क्यों वो एक्स्ट्रा लेबर को यूज कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा लेबर को वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी फैमिली के मेंबर है, देखो ये जो एक्स्ट्रा है वो उनकी फैमिली के ही मेंबर है, उन्होंने बाहर से एम्प्लॉय नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने बाहर से कहीं से लेबर एम्प्लॉय नहीं किया, वो अपने ही घर के जो है लोगों से वो काम कर लोग जो है अपने खेतों पे काम कर रहे हैं। बट 2 लोग जो हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल दे आर वर्किंग बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड, दे हैव नो अदर वर्क टू डू। उनके पास और कोई जॉब नहीं है कि वो वहां पे जाके काम कर सके। तो जब वो क्या खाली बैठे हुए, तो वो इसी जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपने घर के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सपोज आपने आपके घर में आपने कोई बिजनेस ओपन किया, ठीक है, और वो बिजनेस आप अकेले संभाल सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप खुद कर सकते हो। बट एक आपने सपोज एक ग्रोसरी की शॉप खोली, ठीक है, किराना की दुकान खोली आपने अपने घर में, और आप उसमें बैठ के क्या करना है, सामान बेचना है आपको, ठीक है। और एक जो है इंडिविजुअल वो सामान लेकर आ रहा है, और एक होता है ना कि बाहर से सामान आपको लेकर आना है शॉप तक, ताकि आप उसे सेल कर सको। तो 2 लोगों से काम चल रहा है। लेकिन अगर आपके घर में मान लो एक और ब्रदर है, ठीक है, फादर और एक और भाई, एक भाई उसमें काम में लगे हुए, एक जो ब्रदर है वो फालतू का बैठा हुआ एक बच्चा, तो उसके पास कोई काम नहीं, तो वो क्या करेगा, वो भी उसी शॉप में लग जाएगा काम करने में, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें। लेकिन वो क्या करे, घर की दुकान है और उसके पास काम कुछ नहीं है, सिटिंग आइडल, तो ही विल स्टार्ट वर्किंग इन द ग्रोसरी शॉप, ऑल्दो हिज कंट्रीब्यूशन इज नथिंग, वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन वो ही इज अपीयरिंग टू बी वर्किंग सम इज ही विल अपीयर एज वर्किंग एज एम्प्लॉयड, बट हिज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इज नथिंग। तो इसे हम कहते हैं आपका डिसगाइज्ड एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मैं Ma'am, जो हमारे बड़े खेत होते हैं, जो हमारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके अपने बहुत बड़े प्लॉट्स हैं, अपने खेत है, तो वो तो 10 वो तो बहुत सारे जो लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉय करेंगे, उनसे काम करवाएंगे, वहां पे दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहाँ पे फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, घर के लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें ये जो है डिसगाइज्ड और जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। जितने की जरूरत नहीं है उतने लोग काम कर रहे हैं। जैसे बताइए।
You are asking something, Veena. No, ma'am, I was not asking. Okay. Thank you, ma'am. Okay. So basically, it means that all 5 members of her family, देखो इसमें example they are like small farmer like Lakshmi. She has only 2 hectares of land, unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jowar and arhar. So with this example, you can see that this lady, she has only 2 hectares of land which is unirrigated. She has no source of irrigation. Irrigation means कि आप रेन वाटर की जगह दूसरे जो है नदी का पानी या नहर का पानी आप इस्तेमाल करते हो, ट्यूबवेल का पानी आप इस्तेमाल करते हो, तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं. सो उसके पास अनइरिगेटेड लैंड है जिसमें सिंचाई का स्रोत नहीं है, एंड शी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन रेन, एंड शी ग्रोज क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर. ज्वार एंड अरहर का क्रॉप ग्रो करती है. ऑल 5 members ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर. उसके जो घर में 5 लोग हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं, उसी छोटे से खेत में काम करते रहते हैं पूरे साल भर. बिकॉज दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, बिकॉज अदर मेंबर्स जो है उसकी फैमिली के, उसके पास कोई काम नहीं है. यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, none remains idle, but in actual fact their labor effort gets divided. Alright, so आप देखोगे कि उसके 5 मेंबर शायद वो वर्किंग एज ग्रुप के होंगे, वो बड़े एज के होंगे, सबके सब उसके 5 फैमिली मेंबर्स, तो वो दे आर वर्किंग इन द फील्ड, बट एक्चुअली दे आर नॉट रिक्वायर्ड. क्या पता 2-3 लोगों से ही काम हो जाए, बट स्टिल ऑल 5 मेंबर्स आर वर्किंग, बट देयर लेबर एफर्ट इज नथिंग. इट गेट्स डिवाइडेड. ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. ईच वन इज डूइंग सम वर्क, कोई ना अपना अपना थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड. मतलब जितनी आप में कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ा रहे हो, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आपका लेबर एफर्ट 100% नहीं है, तो फिर आप काम कर ही नहीं रहे हो. ठीक है, ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड. अब सपोज सपोज मैं एक ज्योग्राफी टीचर हूँ, मेरे साथ अगर स्कूल में 4 ज्योग्राफी टीचर होते, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को फिर क्या करते हैं, हम एक क्लास 12 11 तक हम उसमें एक चैप्टर हर टीचर पढ़ाता, या 4 चैप्टर हमें साल भर में करने होते, तो हमारा लेबर एफर्ट डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन 100% है ही नहीं. ठीक है, बट राइट नाउ एज ए ज्योग्राफी टीचर आई हैव द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट 100% syllabus of class 11 12, and not only of geography but I have given work of class social science also, to teach social science in 9th and 10th also. So my contribution is 100% because I'm teaching 4 classes. I'm taking number of classes per week. So if you are not working according to your ability, to your full capacity, जो आपकी एक मनुष्य की 100% कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं काम कर सकते हो, तो इट मीन्स दैट यू आर अंडर एम्प्लॉयड. आप देना किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, जहां भी सपोज कोई कंपनी है उसमें 100 लोगों की जरूरत है तो उन्होंने 100 लोगों को ही वो एम्प्लॉय करते हैं, ऐसा नहीं कि 150 लोगों को एम्प्लॉय कर लें. ठीक है, और जैसी उनका जो है लॉस होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, लेबर्स को निकाल देते हैं, क्योंकि अब उनको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम कम लेबर्स में भी चल जाएगा. दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल. दिस काइंड ऑफ, तो एक इंडिविजुअल में जितनी पोटेंशियल है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर अंडर एम्प्लॉयड. It is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called as disguised unemployment. So, underemployment and disguised unemployment both are same, where people appear to be employed, but they are not actually working. They are not working according to their full capacity. Their contribution is very less. Now, supposing a landlord Sukhram comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land, Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Now, अब मान लो इसी में अब दूसरा केस आपको बताया जा रहा है कि ये 5 मेंबर जब अपने खेतों पे काम कर रहे थे तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी, बट अगर उन्हीं 5 मेंबर में से 2 लोगों को कोई दूसरा फार्मर, कोई एक बड़ा किसान आके उसको हायर कर ले एज ए लेबर, और वो कहे कि आप चलो हमारे खेत पे काम करो, तो उस केस में क्या होगा, फिर डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हट जाएगा, क्योंकि वो दूसरे खेत में जाके काम करेंगे और अपनी फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति उन्हें हायर करेगा तो वो उनसे पूरा काम करवाएगा और उसके बदले उन्हें पैसा देगा, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि when they will work on some others field, किसी और फार्मर के खेत पे जब जाके वो काम करेंगे, then they are fully working according to their 100% capacity.
So Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. तो 2 लोग अगर चले भी गए कहीं और किसी और के खेत में काम कर रहे हैं, तो भी जो लक्ष्मी का जो प्रोडक्शन है खेतों का वो कम नहीं होगा, क्योंकि पहले भी वो कुछ उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. इससे अच्छा वो दूसरों खेत में जाके काम करें और उससे कुछ इनकम अर्न करें, तो उससे उनको ज्यादा फायदा होगा. So in the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earnings of the family would increase. So in that case, the earning of the family will increase and the production will also not be affected, because those 2 people were not doing anything. Their contribution was not up to the mark. So there are lakhs of farmers like Lakshmi in India. So there are many farmers in India, lakhs of farmers whose contribution in the production is, not very great, but they are just working for the sake of work, because they have nothing elsewhere to go. Because India has very less and employment opportunities. So ऐसे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर जो थोड़े जिसके पास स्किल एंड ट्रेनिंग नहीं होती है, तो वो लोग जो है जस्ट एज ए अपने खेतों में ही इन्वॉल्व रहते हैं और कहीं नहीं जाते. दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair person, and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on the street pushing a cart or selling something, where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. So in other sectors also, not only in agriculture, other sectors also you can see underemployment and disguised unemployment. For example, in urban areas, शहरी क्षेत्रों में आप देख सकते हो कि बहुत सारे आप देखोगे कि झुंड लगा रहता है, ग्रुप होता है लोगों का जो सुबह सुबह रोज खड़े हो जाते हैं कहीं रोड के पास, और उन्हें जो भी बहुत लोग आते हैं जो उनको हायर, जिनके घर बन रहे होते हैं या जो किसी फैक्ट्री में या किसी और काम में कोई जरूरत होती है, तो लेबर को हायर करके लेके जाते हैं. बट देयर इनकम इज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज कोई गारंटी नहीं है कि आज उन्हें किसी ने हायर किया तो कल उन्हें कोई हायर करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो वो उनका लक होता है. तो उनमें से कोई आया, उन्हें लेकर चला गया काम करवाने के लिए, तो उनको जो है उनकी डेली अर्निंग होती है. बट रेगुलर वर्क तो वो ऐसे दिखते हैं कि हाँ वो काम में लगे हुए हैं, बट उन्हें जो है काम मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं होती है. सिमिलरली जो लोग रिक्शा चला रहे हैं या जो लोग छोटे मोटे और काम करते हैं, कहीं कुछ बेच रहे हैं स्ट्रीट पर लेके सामान, साइकिल पे लेके घूम रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी उस समय कोई उनका सामान कोई खरीद ले और उनकी इनकम हो जाए. तो दिन भर काम करते हैं, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं कि उन्हें उसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाए. ठीक है, तो इस तरह से आपके अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, हर जगह आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज पीपल आर दे डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी टू वर्क. सो दे आर डूइंग समथिंग कि उन्हें कुछ तो मतलब पैसा शायद वो कमा ही लें. नाउ हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. अब हम किस तरह से अधिक रोजगार जो है उसको पैदा कर सकते हैं, किस तरह से. नाउ पहले हम लक्ष्मी का केस देखते हैं. जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लक्ष्मी जो है उसके पास कम जमीन है, 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है. तो अनइरिगेटेड लैंड होने की वजह से, क्योंकि बिकॉज शी डज नॉट हैव इरिगेशन फैसिलिटी फॉर हर फील्ड, फॉर हर प्लॉट, दैट्स व्हाई शी इज ग्रोइंग जस्ट 1 क्रॉप इन अ ईयर. अगर गवर्नमेंट उससे जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करे, बैंक इफ द बैंक और द some other institution provide them loan at a subsidy rate, then she will be able to do something better with her agriculture production. So if the government can spend some money or bank can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land, तो अगर उसके घर के आसपास कुआं बना दिया जाए ताकि वो अपने जो है खेतों में पानी डाल सके, तो वो बहुत ही अच्छा होगा. लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट, या फिर वहां पे नहर पास कराई जाए, या फिर उसको ट्यूबवेल प्रोवाइड किया जाए सब्सिडी रेट पर. तो इससे क्या होगा कि जो लक्ष्मी है वो अपने खेतों में पानी डाल सकेगी और साल में एक नहीं, एक से ज्यादा बार वो अपने खेतों में कृषि कर सकेगी, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी. आज के टाइम में जो है अभी जो है लक्ष्मी अपने खेतों पे वो क्रॉप ग्रो करती है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, लाइक ज्वार एंड जो भी आपने पढ़ा था भी पल्सेस. ठीक है, क्योंकि ऐसे क्रॉप्स है विच रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर. बट इफ इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू हर, इफ वेल इज कंस्ट्रक्टेड near her field, then she will be able to irrigate the land, and then she will be able to grow those crops also, like rice, wheat, as a second crop, which require water in proper amount. तो वो क्रॉप भी वो ग्रो कर सकती है जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है.
तो इसका मतलब क्या है कि अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई तो इससे लक्ष्मी जो है उसको काफ़ी प्रॉफिट होगा। वो अपने खेत में सिर्फ एक ही बार नहीं, साल में 2-3 बार खेती आराम से कर सकती है और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। So, more members of the family can be employed in her own field. Now, suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation. अगर गवर्नमेंट जो है गांव है या जो भी ऐसे एरियाज है, यहाँ पे अगर डैम बनाती है या कैनाल बनाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे भी जो लोग हैं उसको एज ए लेबर का काम वहाँ पे मिल सकता है। तो इससे जो लोग खाली बैठे हुए और एज ए अपीयर हो रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, तो वो खेतों से हटकर जो है इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम कर सकते हैं। सो दिस कुड लीड टू अ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया। तो आसपास कुछ रोड बनवा के, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करके, कैनाल बना के, डैम बना के जो है गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकती है। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स, अब इसमें ये केस बताया जा रहा है कि सपोज गवर्नमेंट जो है लोन प्रोवाइड कर दिया और लक्ष्मी ने कुआं भी बना लिया अपने घर में, उसने इरिगेशन भी कर लिया और साल में 2-3 बार वो जो है प्रोडक्शन कर रही है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। अब उसका जब पानी अच्छे से मिलता है खेतों में तो क्रॉप प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन होता है। अब जब उसको अच्छा प्रोडक्शन होगा तो उसके पास एक्सेस भी बचेगा। एक्सेस मतलब कि वो सेल्फ कंजम्पशन भी कर सकती है और उसके पास एक्स्ट्रा भी बच जाएगा। तो एक्स्ट्रा वो क्या करेगी, मार्केट में उसको बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। सो दे वुड आल्सो नीड टू सेल some of this. For this they may be required to transport their product to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to ग्रो एंड सेल दीज क्रॉप्स। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि सपोज लक्ष्मी जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई और लक्ष्मी के ऐसे बहुत सारे किसान जो है उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई गवर्नमेंट के एफर्ट से, और फिर उनको मार्केट में बेचना है। तो मार्केट में बेचने के लिए उनको क्या चाहिए, उनको बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, उन्हें मिनी ट्रक्स चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसका भी प्रोविजन कर दे तो वो ट्रक चलाने के लिए आसपास के गांव के किसान चाहिए तो उन्हें उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा एज ए ट्रक ड्राइवर। फिर वो जो है किसान है वो अपना प्रोडक्शन इसमें जो है कैरी करके वो मार्केट तक बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड सड़कें बनेगी। तो इससे क्या है, लोगों को और रोजगार मिलेगा और फिर जो लोग हैं मार्केट में अपने जो प्रोडक्शन को बेचकर और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप मतलब एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर है उसमें ही जो है और भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर को ही बेहतर बनाकर उसको मॉडर्नाइज करके जो है और अच्छा उसमें बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर से ही प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है, लोगों को और रोजगार मिल सकता है। लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड्स सीड, फर्टिलाइजर, agriculture equipments, pump sets to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from money lenders and pay a high. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मी है कि सिर्फ पानी आने से ही खेती नहीं जाती है, आपको बहुत और सारी चीजें चाहिए होती है, लाइक सीड्स, रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, फर्टिलाइजर्स. So you require different types of inputs for agriculture, and for this purpose, if you are poor, then you have to borrow money from the money lenders at a high rate of interest. But if the local banks are available, then they can give loan to the farmers. They can give credit to the farmers at lower rate of interest, so that she can buy all these things at a very subsidized and low rate of interest. अगर बैंक पैसा दे देगा कम रेट पर इनको, तो ये उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। नहीं तो अगर आप जमींदार के चक्कर में पड़ गए या किसी साहूकार या किसी अमीर जो बिजनेस होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं गांव के आसपास टाउन्स में, तो वो आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देम, गवर्नमेंट शुड establish local banks like Grameen Bank, so that they can farmers can take loan from them at a low rate of interest, and they can purchase all the inputs which they require. This means that along with water, we also need to provide cheap agriculture credit to the farmers for farming to improve. तो ये हम थर्ड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। Now, another way by which we can tackle this problem is to identify, promote, and locate industries and services in semi-rural areas where a large number of people may be employed. So, instead of only focusing on agriculture, we should also look after some of the, employment, small industries like cottage industries, local self industries, where बहुत ही कम investment में जो है लोग employment जो है अपनी business को start कर सकें. For instance, suppose many farmers decide to go arhar and chickpea, setting up a dal mill to procure and
process these and sell in the cities is one such example. तो अगर आपके गांव में फार्मर्स मैक्सिमम दाल बोते हैं, पल्सेस ग्रो करते हैं, है ना, तो चिकपी है, जैसे चना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कुछ फार्मर्स गांव में ही जो है अपना वो मिल होता है ना, जो दाल को पीसने वाली जो मिल होती है वो लगा सकते हैं, ताकि जो हमारे फार्मर्स उनको सिटीज में ना जाना पड़े पिसवाने के लिए, वो गांव में ही ये काम कर दे, तो जो मिल ओपन करेगा उसका भी फायदा है, उसके बाद आप उसको करके पिसा के और सिटी में भेज सकते हो directly to the consumers. Now, opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potatoes and onions. अगर कुछ farmers मिलके कोल्ड स्टोरेज खोल लें, मतलब एक कोल्ड स्टोरेज आप समझते हो ना, जैसे कि जो उसमें सड़ते नहीं है सब्जियां, लाइक पोटैटो एंड अनियंस, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। फार्मर्स अपने एक्सेस जो है उसमें रख सकते हैं लंबे समय के लिए और फिर उसे मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। सो इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन। मतलब ये आपको डिफरेंट चीजें बताई जा रही हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना होकर आपके आसपास जो भी लोकल मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनसे यू कैन स्टार्ट योर ओन सेल्फ बिजनेस, कोई छोटा मोटा बिजनेस, लोकल कॉटेज इंडस्ट्री आप ओपन कर सकते हो और टोटल आपका जो डिपेंडेंस है आपके खेती पर वो आपका कम हो जाएगा। सो हनी कलेक्शन करना, देन इंडस्ट्रीज लाइक वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स which can be sold in outside markets. This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in large urban areas. तो आप सब्जियां ग्रो कर सकते हो, मान लो आपने व्हीट ग्रो किया, उसके बाद आपका खेत खाली पड़ा हुआ, तो आप उसमें कोई भी सब्जी ग्रो कर दो और उसको आप ले जाके आप आसपास का जो टाउन है छोटा मोटा वहां पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है। Do you know that in India 46.9% of the population belongs to the age group 5 to 29 years? Out of this, only about 52% are attending educational institutions. The rest are not. They may be home or may be working as a child labor. If these children are attend schools, we will require more buildings, more teachers and other staff. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ वन ऑफ द अदर रीजन। अगर हमारे देश के हर बच्चा पढ़ने लग जाए तो हमें और स्कूल बिल्डिंग्स और बहुत सारे टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इससे भी जो है आपका बहुत सारा जो है आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो सकती है। Similarly, if we are able to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, health workers, etc. मतलब अगर हम कहने की बात वही है कि हम डिफरेंट हेल्थ में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, हर जगह स्कोप है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। तो हम चाहे जैसे आपका टूरिज्म है, रीजनल क्राफ्ट है, इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी सेक्टर, तो इसमें जो है रोजगार की काफी पोटेंशियल है। टूरिज्म, टुडेज टूरिज्म इज ए वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का। देन आपके जो रीजनल क्राफ्ट है, जो आपके साड़ियाँ बनाने से लेके, कढ़ाई बुनाई से लेके, जो आपका रीजनल है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया का है, साउथ इंडिया का है, नॉर्थ ईस्ट का है, तो आप उसको यूज करके काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हो। Then we must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. तो ये तो जो चीजें बताई गई हैं काफी इसमें समय लग सकता है और ये सक्सेसफुल हो ना हो इस पे भी वो होता है। तो अब हमें क्विक कुछ करना चाहिए ताकि लोग जो हैं उनको रोजगार मिल सके और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो सके। तो इन इंडिया वी मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया एंड देन एक्सटेंडेड इट टू एन एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट्स। तो आपने इसके बारे में सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट ने जो थी वो एक नया कानून लेकर आई, जिसका नाम था, एक एक्ट लेकर आई, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। all those who are able to and are in need of work are guaranteed 100 days of employment। देखो अब मनरेगा का बहुत ध्यान सुन लो क्या होता है। मनरेगा एक ऐसा स्कीम है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो गांव के जो लोग होते हैं, रूरल अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, उनको एक साल में 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है। अगर आपके पास एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जो गांव के वर्किंग एज ग्रुप होता है, और ये पूरे भारत में नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सिलेक्ट किया गया था, उसके बाद उसको और इंक्रीज कर दिया गया, इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और इंक्रीज कर दिए, 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत की पूरी। तो इसमें जो सबसे बैकवर्ड हमारे एरियाज हैं उनको लिया गया इसमें, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें वो लोग जो कि काम करने की एज ग्रुप में है बट दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, सो गवर्नमेंट इज गिविंग देम बेरोजगारी भत्ता जिसे हम कहते हैं, वो उन्हें दिया जाता है। और उन्हें जो है 100 डेज का उन्हें कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये जो कार्ड है इसको दिखा के आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, और उन्हें 100 डेज ऑफ जो है कंपलसरी और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देना गवर्नमेंट का काम है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसे 100 डेज आप समझ सकते हो कितना, कम से कम 3 महीने लगभग होते हैं। तो उन्हें साल में 3 महीने सरकार को कहीं ना कहीं उन्हें काम जरूर देगी। कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं रोड बन रहा है, कहीं कोई काम हो रहा है, उन्हें देना ही देना है। जिसके पास भी मनरेगा का कार्ड है तो वो जब भी कहीं जाएंगे, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क है या जो भी है, तो इंडस्ट्री है कोई, तो उन्हें वहाँ पे कोई ना कोई काम जरूर मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट फेल हो गई उन्हें 3 महीने काम देने में, तो फिर उन्हें जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जो भी उनका होता है उतना मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इनको कम से कम साल में 3 महीने तो इन्हें रोजगार मिलना मिलना गारंटी होता ही है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मनरेगा। मनरेगा गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट टू दोज पीपल हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क। ठीक है। जो काम करना चाहते हैं और जो काम करने की तलाश में है, उनको 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड दिस इज फॉर द रूरल पीपल। ठीक है। रूरल अनएम्प्लॉयड के लिए ये शहरों में नहीं है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। ये लिखा हुआ देखिए, प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस to the people. The type of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act. You get division of sectors as organized and unorganized. ठीक है। ये अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, बस मैं इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड, या तो इस टॉपिक को हम कल ही करते हैं क्योंकि अभी इतना टाइम बचा नहीं है, तो इसे हम कल करेंगे। तो आज हमारा इतना टॉपिक खत्म होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है अबाउट which sector gives maximum employment to the people. So still it is primary sector. And then why this is happening? Because secondary and tertiary sector are not able to generate so much employment. Then we studied about the different types of unemployment, basically disguised unemployment and underemployment. Both are same thing, where people appear to be employed but their contribution, their per labor productivity is very less. Then आपने पढ़ा कि how we can increase employment opportunities in the agricultural activities, and how we can improve employment opportunities in the urban areas. Urban areas में भी हम increase कर सकते हैं employment opportunities. Then we talked about this मनरेगा act. So मनरेगा provides 100 days of guaranteed employment to the rural unemployed people for 100 days. And if this is centrally sponsored scheme, and if government fails in this, they provide unemployment allowance to the people. So this up to this you have to thoroughly revise. Tomorrow I will ask questions based on this topic, and you have to give the answer. Now tomorrow we will study about division of sectors as organized and unorganized. तो ये टॉपिक हम कल करेंगे अगर ये फिनिश। एंड फिर मैं आपका जो है एक ओरल आपका जो है क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, उसमें से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। सो यू हैव टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर, आप पढ़कर आएंगे बहुत ही अच्छे से। और ऐसा नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया। अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे तो मैं आप बहुत अच्छे से, मैंने सारी डिटेल बना रखी है कि कौन बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं और कौन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो यू विल नॉट गेट इंटरनल मार्क्स। तो अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, एक